সরকারের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের সবথেকে লোকপ্রিয় নেতা মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে করতালি দিয়ে একবার স্বাগত জানাবো। এবং তার সঙ্গে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, বিধানসভার বিরোধী দল নেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় সমেত রাজ্য নেতৃত্বকে জানাবো বিশ্বের সর্ববৃহৎ লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র ভাই মোদীকে উত্তরীয় এবং তার সঙ্গে যে মায়ের মূর্তি এবং মোমেন্টো আছে, ছবি আছে, দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে স্বাগত করার জন্য। মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ। বন্দে 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 मातरम भाई मातरम, मातरम भाई मातरम। मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मोदी जी को स्वागतम, मोदी जी को स्वागतम, मोदी जी को स्वागतम, स्वागतम भाई स्वागतम, मोदी जी को स्वागतम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम भाई जय श्री राम। এখন শুধু কমল ফুলের মালা দিয়ে প্রদেশের নেতৃত্ব বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সকলকে আমি অনুরোধ করব করতালি দিয়ে স্লোগান দেন, भारत माता के, भारत माता के। मोदी जी स्वागतम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। এরপরে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নন্দীগ্রামের জনপ্রিয় বিধায়ক, আমাদের সকলের প্রিয় সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে আমি অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে স্বাগত করার জন্য তার সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে। भारत माता के। আরে জোরে বলতে হবে তো, নবান্ন কাঁপছে তো। भारत माता की जय श्री राम। भोले बाबा, भोले बाबा, बम बम त्रिशूलधारी। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী 140 কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠার প্রাণসম নেতা, বিশ্বের সবচেয়ে লোকপ্রিয় নেতা, সম্মানীয় প্রণম্য পূজ্যপাত শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি। আমি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা 2,28,00,000 ভোটার 21 সালে পদ্মফুল কমলে ভোট দিয়েছেন, তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক স্বাগত, অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্রিয় সভাপতি এবং অত্যন্ত লোকপ্রিয় সাংসদ সাথী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহোদয়, কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী, মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি ভাই শান্তনু ঠাকুর এবং সম্মানিত মঞ্চ আমাদের অবজারভার
মঙ্গল পাণ্ডেজি সহ প্রত্যেককে আমি আন্তরিক সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা যার কথা শোনার জন্য এসেছি তাকে বসিয়ে রেখে আমরা দীর্ঘ বক্তব্য রাখব না। গত 3 বছর প্রায় আমি এবং ডক্টর সুকান্ত মজুমদার সাংসদ বিধায়ক আপনাদেরকে সবাইকে নিয়ে আমরা তিলে তিলে চোখে চোখ রেখে পশ্চিম বাংলায় সংগ্রাম করেছি। আজকে আমাদের নেতা, আমাদের মার্গদর্শক, তার উপস্থিতিতে আমি স্মরণ করব 2021 সালে নির্বাচনের পরে পোস্টপোল ভায়োলেন্সে ভারতীয় জনতা পার্টির মগরাহাট পশ্চিমের প্রার্থী মানস সাহা সহ 57 জন কার্যকর্তাকে যারা শহীদ হয়েছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি করতে গিয়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভয়াবহতা আমরা দেখেছি। তাই আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের মুখ থেকে সবিস্তারে শুনব। পশ্চিম বাংলায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি রাজধর্ম পালন করেছেন। 2004 থেকে 14 কংগ্রেস ইউপিএ 1 এবং 2 মানরেগাতে মাত্র 14,000 কোটি টাকা দিয়েছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। গত 9 বছরে 54,000 কোটি টাকা দিয়েছে। আর এই চোর তৃণমূল সব টাকা লুটপাট করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইজ্জত ঘর 72 লক্ষ দিয়েছেন। এই চোর তৃণমূল 72 লক্ষ শৌচালয় লুট করেছে। যেখানে কংগ্রেসের সরকার 4,600 কোটি টাকা আবাসে দিয়েছে 10 বছরে, সেখানে 9 বছরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এনডিএ বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে 30,000 কোটি টাকা দিয়েছে 40 লক্ষ বাড়ির জন্য। কোন গরিব বাড়ি পায়নি, চুরি করে নিয়ে গেছে। শিক্ষা দপ্তর জেলে, খাদ্য দপ্তর জেলে, প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা, চাল আর গম এই বাকিবুর রহমান, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা, শাহজাহান শেখরা পাচার করেছে। বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই। আসুন আমরা শপথ নিই যে অত্যাচার রামপুরহাটের বগডুই থেকে সন্দেশখালী পর্যন্ত হয়েছে। আমরা সবাই শপথ নিই লোকসভা নির্বাচনে আমাদের নেতা অমিত শাহজি তিনি বলে গেছেন 35টা আসন দিতে হবে নরেন্দ্র মোদীজিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করার জন্য। পশ্চিম বাংলার যেন যোগদান ভূমিকা থাকে, এই শপথ নিয়ে আজকে বাড়ি ফিরবো। আর পশ্চিম বাংলা থেকে মমতা ব্যানার্জির পারিবারিক পার্টিকে, তুষ্টিকরণের পার্টিকে, करप्शनर पार्टी के, भ्रष्टाचारी के उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता करेगी। एटाई आमादेर शपथ। आमी परिशेषे बोलबो এইবার 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 फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोदी मोदी मोदी। भारत माता की जय श्री राम, जय जय बाबा तारकेश्वर। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় বিরোধী দলনেতা বিধানসভার শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। তিনি আপকি বার 400 বারের স্লোগান দিলেন। এরপরে জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। জগন্নাথ প্রভুর যে ছবি আঁকা, এরপরে বালুরঘাটের জনপ্রিয় সাংসদ তথা পশ্চিম বাংলার ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি আমাদের সকলেরই প্রিয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
ভারত মাতা কি ব্যাপার, পিছনের দিকে হাত উঠছে না কেন? আওয়াজ যাচ্ছে। মোদিজিকে স্বাগত জানাতে হবে, বলুন ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। মঞ্চে আজকে আমরা চরম সৌভাগ্যশালী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নয় গোটা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, তিনি আজকে আপনাদের আরামবাগের এই মাঠে এসেছেন আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য, আপনাদের সাথে জয় শ্রীরাম বলার জন্য, আপনাদের পাশে এসেছেন। এবং এসেছেন কবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভগবান রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে আজকে আমাদের মাঝে এসেছেন। আমরা কয়েক মাস আগে সাগরে আমাদের গঙ্গাসাগর মেলা হয়ে গেল। আমরা শাস্ত্রে পড়েছি ভগীরথ তপস্যা করে মা গঙ্গাকেই মর্তে এনেছিলেন। আজকে আমরা নতুন ভারতের ভগীরথকে দেখতে পাচ্ছি, যিনি অযোধ্যায় রাম মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছেন আমাদের সামনে। এই ভগীরথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদের মাঝে আছেন, আমরা ধন্য হয়েছি। উপস্থিত আছেন আমাদের এই বিধানসভার লড়াকু বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, যিনি মুখ্যমন্ত্রীকে তার কেন্দ্রে নন্দীগ্রামে পরাজিত করে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। শুভেন্দু দাকে জোরে হাততালি দিয়ে আপনারা সবাই স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের ইনচার্জ মঙ্গল পাণ্ডেজি, আমাদের ইনচার্জ অমিত মালব্যজি, আশা লাকড়াজি, সমস্ত সাংসদ এমএলএরা। পরিশেষে শুধু এই সবার নাম নেয়ার সময় নেই, সময় খুব সীমিত। উপস্থিত এই জেলার জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক বিমান ঘোষ সহ অন্যান্য জেলার জেলা সভাপতি, সবাইকে একবার জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। বন্ধুগণ, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। গতকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর খুব আদরের ভাই শেখ শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা দেখলাম কেন বাধ্য হয়েছে বন্ধুগণ। বিজেপির আন্দোলন, সন্দেশখালীর মহিলাদের আন্দোলন, মা বোনেদের আন্দোলন। আর এই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেন, আমি সেই কথা রিপিট করছি, এই সময় হ্যাঁ, সেই সময় হ্যাঁ, মহিলারা মুখ খুলুন, তৃণমূলের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঝাঁটা ধরুন, অস্ত্র ধরুন, লড়াই করুন, তৃণমূলকে উৎখাত করে ফেলে দিন। বন্ধুগণ, আজকে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হচ্ছে, লজ্জা লাগে। বুক ফুলিয়ে শেখ শাহজাহান হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে পুলিশ শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করেনি, শেখ শাহজাহান পুলিশকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে দড়ি দিয়ে, অদৃশ্য দড়ি দিয়ে। লজ্জা লাগে প্রশাসনকে দেখলে, আর লজ্জা লাগে এরকম মুখ্যমন্ত্রীকে দেখলে, যিনি মহিলাদের উপর অত্যাচার হওয়ার পর বলেন যে এই মহিলাদের উপর অত্যাচার শেখ শাহজাহান করেনি, শেখ শাহজাহানকে টার্গেট করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন না। একজন মহিলার হরণ হয়েছিল বলে আমরা রামায়ণ করেছিলাম, একজন মহিলাকে চুল ধরে টেনে এনে বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল বলে এই ভারতবর্ষের বুকে মহাভারত হয়েছিল। আপনি তো কয়েকজন মহিলাকে আপনার ভাইয়েরা অত্যাচারিত করেছে। আপনার পতন অনিবার্য, কেউ আটকাতে পারবে না আপনার পতন, আপনার সরকার। তাই বন্ধুগণ, গতবার 1000-এর সামান্য বেশি ভোটে আমরা এই সিট হারিয়েছিলাম, মনে আছে তো? মনে আছে? এবং চুরি করে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল, সত্যিকারে মানুষের ভোটে জেতেনি। কি ঠিক তো? ঠিক বলছি তো? এবার এই সিট কি নরেন্দ্র মোদীর হাতে আমরা উপহার দেব না? দেব? সবাই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন তো? তাহলে 2 হাত মুঠ করুন আমার সাথে, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে প্রতিজ্ঞা নিন।
बोलून भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। আমি আর আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবথেকে বড় নেতা এবার আপনাদের সামনে আসবেন তার বক্তব্য দিতে। সবাইকে নমস্কার, সবাই খুব ভালো থাকবেন। तारकेश्वर महादेव की, तारकेश्वर महादेव की। आरामबाग वासी के আমার आंतरिक शुभेच्छा। बोरोरा प्रणाम एवं छोटोरा আমার ভালোবাসা নেবেন। सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को सामर्थ्य देने वाली इस भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां बगल में ही खानाकुल में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने जन्म लिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ्य दिया था। मैं खानाकुल की इस धरती को प्रणाम करता हूं। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्याण के लिए जी जान से जुटा हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहां कुछ नौजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे। वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। आप सबका, क्योंकि ये धरती तो रग रग में कला, आर्ट, ये यहाँ की विशेषता है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि भावी पीढ़ी और वर्तमान युवा पीढ़ी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीक है, और इसलिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे यहां 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों,
पश्चिम बंगाल आजादी के आंदोलन की प्रेरणा स्थली रही है। गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेतृत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करे। आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका ये सपना पूरा कर रहा है। बीते 10 साल में भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। G20 में कैसे भारत की जय जयकार हुई ये हम सबने देखा है। आज भारत स्पेस सेक्टर में अग्रणी बन रहा है। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है। आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समृद्धि और हमारा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर फिर से पूरे गौरव से नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। और यह हम सभी का सौभाग्य है कि 5 सदियों के इंतजार के बाद 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह रामलला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई,
मुसीबतें झेली, बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर दे रहे हैं उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है। यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं,
अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। नोटों के ढेर आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने। और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट
हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहाँ की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके। वो पक्के घर में दिवाली, होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है। हर घर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से, नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे। साथियों, उसे माताओं, बहनों, बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। साथियों, हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है।
इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब, एससी, एसटी, इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीएमसी मना कर रही है। टीएमसी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने में भी लंबे अरसे तक अड़ंगे लगा रही है। भारत सरकार के प्रयासों से यहां बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें। साथियों, टीएमसी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। ये 4 वर्ग जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हम गांव की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा की सरकार गांव-गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों करोड़ की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिले। खिलेगा? खिलेगा? टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार। मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए। आप अपने अपने गांव जाएंगे तो वहां सबको कहना
कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है। कहेंगे? दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বের সবথেকে লোকপ্রিয় নেতা আমরা বক্তব্য শুনলাম। আমি জোর করে বলবো আপনাদেরকে, আপনারা সবাই সাথ দিন। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद।